Good morning, dear students. Today we'll be doing the third chapter, Human Reproduction. In today's lecture, we'll be talk about pregnancy and embryonic development. In the last lecture, we read about fertilization and implantation, and during the process of fertilization, the male gamete or sperm fuses with the secondary oocyte or ovum to finally form a diploid zygote. The zygote undergoes several mitosis division, and these divisions are considered as cleavage, and the byproduct of cleavage is always morula. Morula is 16 or 32 celled stage. After morula formation, the next developmental stage is blastulation. During blastulation, a blastula is formed. Blastula have a central fluid-filled cavity known as blastocele, and the cells are differentiated into two groups: the inner cell mass and the outer cell mass. The outer cell mass is also known as trophoblast, while the inner cell mass later on form the main embryo. After blastulation, the next stage is gastrulation stage, which is one of the most important stages during the embryonic or fetal development. During gastrulation, three germ layers called ectoderm, mesoderm, and endoderms are formed. Dear students, in today's lecture, we focus on the process of embryonic development and pregnancy. So what happens, as we know that after fertilization, the outer cell mass, as we know, during the embryonic development stage, we know that outer cell mass and inner cell mass are formed. The outer cell mass is also known as trophoblast. This outer cell mass, or this one is the outer cell mass and this one is the inner cell mass and this one is the blastocele. The outer cell mass or trophoblast finally forms finger-like projections after implantation. हम ये जानते हैं कि इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो है ये यूट्रीन की मायोमेट्रियम से, यूट्रीन की वॉल से या यूट्रस की वॉल से एसोसिएट हो जाता है, और वहाँ एसोसिएट होने के बाद ये एसोसिएशन में भी पार्टिसिपेट करता है ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट एक और काम करता है. आफ्टर इम्प्लांटेशन द ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म some finger-like projections, and these finger-like projections are called chorionic villi. This type of structures it is formed. The finger-like structures is called chorionic villi, and these chorionic villi are surrounded by some uterine tissue and maternal blood. What happens? If you see the diagram, this is the uterus and this is the fetus. This is the wall, and in this wall the outer cell mass
or trophoblast form some finger-like projections. These, the inner finger-like projections you saw here, you can see here, these structures, finger-like structures. These finger-like structures are called the chorionic villi. What they called? Chorionic villi. And these chorionic villi is surrounded by some uterine uterus tissue and maternal blood, the blood of mother. So the chorionic villi plus surrounded by the uterine tissue and maternal blood together constitute placenta. This one, let us suppose the red one is the uterine tissue and the blue one is the chorionic villi. These two together constitute a structure known as placenta. And the placenta is the tissue which is connected to the embryo. It is usually the connecting link between mother and embryo or fetus. What is the main function of placenta? The main function of placenta is to provide nutrient and oxygen to the fetus and to exhale the waste and CO2 of the fetus. So let us suppose this one is placenta, this whole structure, and this one is the fetus. Nutrient and oxygen came from the mother blood. मदर से जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है वो उसके फिटस को मिलेंगे थ्रू द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और फिटस को कनेक्ट करने का काम करता है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड. दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आप देखते हैं आफ्टर डिलीवरी इसको काट दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को. सो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होगी एक अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होगा फिटस. सो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन आएंगे फ्रॉम मदर और मदर से आएंगे और कहाँ जाएंगे? फिटस में थ्रू प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड. और यहाँ से जो इस फिटस का जो वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर आ जाएंगे. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ placenta? The main function of placenta is to provide nourishment from mother to the fetus. One thing you must have to remember that there is no intermixing of mother blood with the fetus blood. मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता. ओनली फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मदर ब्लड इज ट्रांसफर इनटू द फिटस. देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना. आपको पता है ये आईजीजी जो होता है ये ट्रांसफर करता है मदर से उसके फिटस पे. सो And another function of placenta is placenta also act as an endocrine organ. Endocrine organs which secrete some hormones. Endocrine organs हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं और एक्सोक्राइन organs एंजाइम्स का सेक्रेशन करते हैं. So it also act as an endocrine organ और बहुत सारे हार्मोन्स को प्लेसेंटा सेक्रेट करता है, जिनमें से कुछ हार्मोन्स, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन में से एक है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. इट इज ऑल्सो नोन एज HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ
HCG, the main function of HCG to initiate and maintain corpus luteum. तो इसका HCG का काम है मेंटेन करना, डैमेज होने से बचाना और अलाइव रखना किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को। और इन रिस्पॉन्स कॉर्पस ल्यूटियम का काम आप जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, दो हार्मोन सेक्रेट करता है। द वन इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन एंड द अदर इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। Progesterone, the main function of progesterone is to maintain the growth of uterine wall, while the main function of estrogen is to one is to maintain uterine wall growth and other is to maintain and develop the mammary gland. So HCG का काम है कि वो कॉर्पस ल्यूटियम को अलाइव बनाए रखेगा और कॉर्पस ल्यूटियम इसके बदले में दो हार्मोन सेक्रेट करेगा। वन इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन एंड अदर इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। और एक रफ आइडिया अगर प्रेगनेंसी का लगता है तो वो HCG लेवल से भी लग जाता है। इफ द लेवल ऑफ HCG इन फीमेल इज हाई, जो नॉर्मल लेवल होगा उससे हाई होगा, तो इट मीन्स वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ये तो बात हो गई पहले हार्मोन की HCG। द अनदर हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा इज कॉल्ड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, HPL। ये HCG की मदद से ही एक और हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से सेक्रेट आउट होता है, विच इज नोन एज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एंड दिस हार्मोन इज यूजुअली help in the development of breast. Some other hormones are also there. Estrogen, progesterone, हमने अभी इनके बारे में पहले भी पढ़ लिया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है। एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड बनाने का काम भी करेगा, यूट्रीन वॉल को सपोर्ट भी करेगा, और प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये बेसिकली इसका मेन फंक्शन हमेशा होता है टू स्टिमुलेट और टू ग्रो द यूट्रीन वॉल, the uterine cavities. Some other hormones are also there, cortisol, prolactin, relaxin, बहुत तरीके के हार्मोन जो हैं, इसको सेक्रेशन का पूरा काम जो है वो कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। अगर मैं इन सारे हार्मोन्स का एक बेसिक फंक्शन बोल दूं तो इन सारे हार्मोन्स का एक बेसिक फंक्शन है इज टू सपोर्ट द फेटल ग्रोथ एंड टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो इन सब का एक बेसिक काम है कि प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करते हैं और फिटस की ग्रोथ को ये फिटस की ग्रोथ के लिए ये इसेंशियल होते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि दिस वन इज द प्लेसेंटा, इसमें कोरियोनिक विलाई भी है और साथ में कुछ यूट्रिन टिश्यू भी हैं। ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़ गई ये अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है फिटस, और यहाँ नीचे एक म्यूकस प्लग लगा हुआ है। ये म्यूकस प्लग जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में होता है। कैसे सपोर्ट करेगा? ये कोई भी ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया और वायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा को यहाँ यूट्रस में, ये पूरा यूट्रस है, इस यूट्रस में एंटर करने से रोकने का काम करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस प्लग। एंड ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तो आफ्टर द प्रेगनेंसी टाइम, 9 month टाइम इज़ ओवर, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये म्यूकस प्लग यहाँ से बाहर आ जाता है और इसकी वजह से ये जो फिटस है, जो फुल ग्रोन फिटस होगा, एम्ब्रियो होगा, वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फिर यहाँ से बाहर आएगा। सो दीज आर ऑल द हॉर्मोन्स वी टॉक अबाउट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हमने देखा था कि दो भागों में डिवाइड हो गया था एम्ब्रियो इनिशियली, आउटर सेल मास, जिसको हमने एक और नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट,
और दूसरा हमने बोला था कि इनर सेल मास मेन है। आउटर सेल मास ने क्या काम किया? आउटर सेल मास ने प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेन एम्ब्रियो नहीं बनाया। इसीलिए द प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू? तो जो प्लेसेंटा है, जो ये प्लेसेंटा है, इट ऑल्सो एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। अब बच गए, आउटर सेल मास तो हो गया, इनर सेल मास। इनर सेल मास फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर। अगर आप इनर सेल मास की बात करेंगे तो ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा, बिकॉज इनर सेल मास इज कंपोज्ड ऑफ स्टेम सेल्स, and stem cells have the tendency to develop, to form many things. Finally, the inner cell mass during the gastrulation phase क्या होगा? तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि एक्टोडर्म जो होती है वो आगे ग्रोथ करके क्या बनाती है? ब्रेन टिश्यू, ब्रेन वाला पार्ट, आइज, स्किन, ब्रेन, ये सब बनाने का काम कौन करेंगे? एक्टोडर्म। मीजोडर्म हमने बोला था सोमाइट्स, इनिशियल मसल्स, बोन्स, ब्लड, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाने का काम करेगा। और जो एंडोडर्म होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होगी, इट कैन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड respiratory system and respiratory organs. So this is all about the embryonic development. During the pregnancy phase what happens? देखिए, जब प्रेगनेंसी का 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद हार्ट डेवलप हो जाता है और हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है फिटस की। सो स्टेथोस्कोप से हम इस हार्ट बीट को सुन सकते हैं और ये फर्स्ट साइन है फिटस की लाइफ का। एट द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के 2 मंथ पूरे हो जाते हैं तो लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ 3 मंथ, अगर हम बात करें 12 वीक या 3 मंथ, इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है पहले 3 महीनों में। 4th मंथ में ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है। 5th मंथ में, एट द एंड ऑफ 5th मंथ, 5th मंथ में लिम्स मूवमेंट इन बॉडी स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि बच्चा पेट में लात मार रहा है, या तो जो बच्चे का मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है, लिम्ब का मूवमेंट जो है शुरू हो जाता है। एट द एंड ऑफ 24 वीक्स और 6 मंथ और एट द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, आईलिड जो हैं वो सेपरेट होना शुरू कर जाती हैं। और एट द एंड ऑफ 9 मंथ जो एम्ब्रियो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। और इस 9 मंथ को कंप्लीट होने के बाद एम्ब्रियो पूरी तरीके से रेडी है। देन डिलीवरी की प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है इन मसल्स में, यूट्रस की मसल्स में, और इस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मदद से फाइनली जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस है वो डिलीवर हो जाता है। So this is all about the topic embryonic development in pregnancy। और इस टॉपिक में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे आउटर सेल मास और इनर सेल मास में फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। आउटर सेल मास जो है वो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आगे चलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू या प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है, जबकि इनर सेल मास जो है वो मेन एम्ब्रियो या एम्ब्रियो प्रॉपर बनाते हैं। और हमने साथ में ये भी देखा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या अलग अलग सिम्टम्स जो हैं जो दिखाई देने लगते हैं।
सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।